Hello everyone. Today we are at the New Delhi World Book Fair and you all are welcome to the Wordly Wise podcast. We have with us our author Mr. Anuj Guglani and he's the author of Oye Hoye and he also happens to be an entrepreneur, the founder of World Auto Forum. So welcome to our podcast. So Mr. Guglani, आप बताइए अपनी ओए होए के बारे की जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? So thank you so much Chandni for having me over. So ओए होए की जर्नी शुरू हुई थी नवंबर 2021 में and I had been writing things in the before that as well, but writing a proper fiction book, that's how it started, and I started writing all of a sudden on my mobile. So it reminds me of the Hollywood movie Forrest Gump, in which he says, I just started running and I kept running and running and running. So I just started writing on my phone and I just kept writing and writing and writing, and I ended up writing more than 250 pages, and of course after editing it's a 250 pages book now. And I wrote at many locations. I wrote in the hills of Kasauli, at the Kasauli Club, at Mahal Farms there. I wrote in the Vasant Vihar Club, in Breads and More outlets in Vasant Vihar, and also in the most important place where you get the best innovation and creativity, and that is my washroom. Oh my God. The epicenter of creativity. And as the cover says, and shows, so the book is basically on nostalgia. So the cover evokes and provokes nostalgia. So I want to ask you, since we are talking about Oye Hoye and how the journey started, the cover is spectacular. It's a very very beautiful cover, very attractive, very eye-catching. तो आपने जो कैसेट बनाया है वो तो मैं समझ गई, since we are talking about the 80s and 90s. What more is there on the cover? Well, I would say कई सारे लोग जिनका 80s और 90s में बचपन या यूथ बीता, उनकी तो एक तरह से उस टाइम की पूरी स्टोरी ही इस कवर में है. बुक में तो है ही है, बट कवर ही वो दर्शाता. अगर आप देखें इसमें उस टाइम ऑडियो कैसेट्स होती थी, फिर उसमें पेंसिल डाल के हम रील अंदर करते थे, क्योंकि रील टेप रिकॉर्डर के हेड में फंस जाती थी और वो हमारे हेड में भी घुस जाती थी कि यार टेंशन होगी, अब मम्मी पापा मारेंगे, डांट पड़ेगी. और जैसे आप देखें ना, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना दिल ढूंढते हैं FB और इंस्टा रील्स पे. यहाँ पे इस ऑडियो कैसेट की रील का दिल बना हुआ है. तो रफ़ी और किशोर सॉन्ग सुन के वो अपने कई बार टूटे हुए या ज़ख्मी दिल को दिलासा देते थे, या अपने महबूबा या महबूब के बारे में सोचते थे. So the book is basically about the stories from school, from college life, from boys hostel, girls hostel, and also at that time, as the book also says, the days of the rotary dial phones and their bulky receivers. उस टाइम कहाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह होते थे. So perhaps people were smart and the smartphones were missing in action, and no meta world and no digital world and snail mail, no emails. So बहुत different world था. Archie's Gallery के cards हम लेते थे, Archie's cards, और anonymously we would send जिस पे crush था, to our crush, and then the freshers party, and then the boys hostel, and some super seniors with underworld links. So this is the book is all about. तो मोटा मोटा इसमें क्या निकल गया था, अगर आप देखें ना किताब में उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो हॉस्टल सर्वाइवल गाइड पावर्स ज़िंदगी हमेशा. मतलब वो हॉस्टल के 3 या 4 साल जो बच्चों ने निकाले गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल में, वो टाइम ने उनको ऐसा सक्षम कर दिया कि वो ज़िंदगी को फेस करने के लिए रेडी हो गए. मतलब दोज 3-4 years ऑफ एजुकेशन, मैं तो बोलूँगा कॉलेज एजुकेशन वॉज ओके, डिग्री मिल गई, ठीक है. जिन्होंने अपनी एजुकेशन अप्लाई करी उनकी लाइफ भी बन गई, क्योंकि कितने लोग इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग करी, MBA किया, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम. बट जो रियल लर्निंग होती है, रियल लर्निंग तो हॉस्टल में होती है, वे यू लर्न द टेनेट्स ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, सर उठा के कैसे जीना है आप, एंड जो आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप्स हैं, जो आपके बेस्ट किस्से हैं, जो आपकी सबसे बड़ी शैतानियाँ हैं, जो द स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, लॉयल्टी, बीइंग देयर फॉर ईच अदर, वो तो सारी हॉस्टल में आती हैं. तो दैट्स व्हाट द बुक इज़ ऑल अबाउट. एंड जो हॉस्टल में नहीं भी रहे हैं वो भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्ती, यारी, कंपेनियनशिप, ये तो फिर यूनिवर्सल चीज़ें हैं. और 80s 90s में, बिकॉज मेरा भी उस टाइम, ये आई बिलोंग टू द सेम एरा, दूसरा जो भी के बच्चे हैं, इट्स अ वेरी गुड रिंग साइड व्यू फॉर देम टू नो सो हाउ देयर पेरेंट्स और एल्डर्स लिव देयर लाइफ बैक देन, एंड कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन ग्राउंड टू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. एंड कम्युनिकेशन आजकल थोड़ा कम होता जा रहा है.
बड़ों और बच्चों में. तो दिस कैन बी रियली अ वेरी गुड कॉमन ग्राउंड टू स्टार्ट अ वेरी healthy communication, a non-complaining communication, a humorous communication, which can build bridges and build relationships, or even mend relationships, you know, like that. There's a lot that is in this book, और जो लोग पढ़ेंगे उनको भी इसको पढ़ कर के आई थिंक ये बुक किसी एक एज ग्रुप के लिए या किसी एक सेक्शन के लिए नहीं है. बिकॉज जब हमारी इनिशियली बात हो रही थी और आपने मुझे इसका एक PDF भेजा था फॉर द बुक, इट वॉज सो अट्रैक्टिव टू रीड कि मैं जनरली इतना सैम्पल्स नहीं पढ़ पाती हूँ जब मेरे पास में आते हैं, बट इसको मैंने ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म करा था बिकॉज बहुत ही मज़े आ रहे थे. तो वो जो मज़ा आ रहा था ना उस बुक में, वो मुझे आपसे जानना है कि आप बताइए रीडर्स को कि वो जर्नी आपकी बुक में कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है. चांदनी, रियली थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. इट रियली मेड माई डे. सो जर्नी देखिए, कहीं ना कहीं ऑथर का एक अपना पर्सनल एंगल हर किताब में होता ही है. अब वो बायस क्रिएट कर दे या वो कुछ कर दे, या एक इन्फ्लुएंस तो होता ही. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन एज अ थर्ड पार्टी, यू नो, एज अ थर्ड वॉइस. सो बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम एरा. सो शुरू में किताब में लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ फिक्शन inspired by true events. So it's like a balance, you know. So जैसे इसमें शुरू के चैप्टर्स हैं, मतलब एवरेज हो तो मेजॉरिटी हो. अब अभी भी होता ही है, बट जो स्कूल में, जो मैंने देखा था अपने स्कूल में भी, कि मेजॉरिटी बच्चे एवरेज ही होते थे. मतलब उनका काम क्या होता था, स्कूल में लाइंस में असेंबली में बैठे हैं, होमोजीनियस लाइंस हैं, यूनिफॉर्म में बैठे हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, स्कूल के बिल्स भी सारे पे हो रहे हैं, फीस भी टाइम से आ रही है, और वो किसी भी चीज़ में बहुत अव्वल नहीं है, बहुत एवरेज है. मतलब वो जो तंबोला गेम में भी जो लास्ट का अनलकी प्राइज़ है, वो उनको वो भी नहीं मिलता, वो भी उनका रह जाता है. उनका हाउसफुल एक नंबर पहले हो जाता होगा. तो वो उनको कोई लड़की देखती भी नहीं है जब 9th-10th में आते हैं, हार्मोन स्टार्ट किकिंग इन. वो तो मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे होते हैं. और कई लड़के होते हैं स्मार्ट, स्पोर्ट्स पर्सन टाइप, पढ़ाई में अच्छे, वो यूनिफॉर्म भी मस्त एकदम तरीके से पहनना है, और लड़की के सामने भी एकदम अच्छा दिखना है, और लड़कियाँ उनको देखती हैं तो हमारा हीरो है. और इन लड़कों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ये मिट्टी में कुश्ती कर रहे हैं, ये ऊँच नीच का पापड़ा खेल रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में भी. So like that. ये ऊंच नीच का पापड़ बोला है, ये ना पुराने टाइम में ले गया, मुझे सुना ही नहीं है बहुत सालों से. तो आप बिल्कुल वो चीज़ आप सही कह रहे हैं कि हमारे ना ये सब टर्म्स आपने बुक में यूज़ करी हैं अपने. तो आई एम श्योर ये सुनकर के लाइक पीपल लाइक आवर जनरेशन एंड आवर पेरेंट्स ऑल्सो, मे बी नॉट आवर चिल्ड्रन मे बी, बट पेरेंट्स तक तो हम जा सकते हैं कि उन तक में वो यादें वापस से आएंगी. एंड आवर चिल्ड्रन they would know कि हम लोग कैसे रहते थे, हम लोग क्या करते थे. जैसे हम बोलते रहते हैं ना बच्चों को कि हम तो ऐसे ही रहे हैं, हम तो ऐसे करते थे. तो नाउ दे विल एक्चुअली बी एबल टू कनेक्ट विथ व्हाट वी आर सेइंग. तो आपने अभी बुक खोली थी अपनी और आपने उसमें एक बड़ा अच्छा सा इलस्ट्रेशन दिखाया. आपकी बुक में कई सारे इलस्ट्रेशंस हैं और उसमें एक वन लाइनर्स हैं, वेरी विटी वंस. उनके बारे में क्या आपने क्या सोच करके वो लिखे और वो क्या सोच कर ये आइडिया आया आपको? फर्स्ट आई जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशन कि ये ऊंच नीच का पापड़ा. तो आई जस्ट रेफर टू अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 12. इसमें टाइम्स के बारे में वो ऑथर बोल रहा है, विच ऑफ कोर्स मी, दैट दोज वर द टाइम्स व्हेन देयर weren't even any creches or didis or nannies to take care of your child. So little kids would tag along even with their moms or grandmoms everywhere, even on visits to pay homage to a departed soul. So the sight of wailing ladies and kids playing Oonch Neech Ka Papda alongside was not uncommon. So little Ashok, who's the protagonist, little Ashok often wondered who was more oblivious to the pain of loss. So ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ हैं, you know. So कई बार ऐसे people are mourning, जो एकदम close family होती है वो तो सही में they are connected, they are mourning. कई लोग थोड़ा सा दिखावा के लिए भी जोर से कर रहे होते हैं. तो लिटिल अशोक बहुत जल्दी ये चीज़ें वंडर करता था कि यहाँ पे ऊंच नीच का पापड़ा में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है, यहाँ लेडीज इतनी जोर से चिल्ला रही हैं, वंडर हु इज़ मोर ऑब्लिवियस. तो लिटिल अशोक हैड स्टार्टेड वंडरिंग दीज थिंग्स मच अर्ली इन लाइफ.
सो लाइक दैट। और जो आप वन लाइनर्स की बात कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स एक ही है, DDS, विच इज़ डायरेक्ट दिल से, वो सीधा दिल से आई है, एज सिंपल एज दैट। ये आपने अच्छा हमें सिखा दिया है, DDS। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट DDS आई गेस। देन आप रीडर्स को बताइए कि आपकी बुक कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और उनको अगर आप इसके साथ में कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज़। जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी विद अ पर्पस। घोड़े को घास से दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, वरना घोड़ा खाएगा क्या। तो अभी क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है तो ये किताब अवेलेबल है एट वर्ल्डली वाइज पब्लिशर्स एट G29 बूथ हॉल 5। दिस बुक इज़ अवेलेबल हेयर। और वर्ल्ड बुक फेयर जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगी, तो यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम अमेजोन। क्योंकि 1 to 9 फरवरी हमारा वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, सो यू कैन हैव दिस बुक राइट फ्रॉम द वर्ल्डली वाइज पब्लिशर्स बूथ G29 हॉल 5, where all the action is, authors corner, authors launch, लेखक मंच, सब कुछ यहाँ पे है। Thank you so much. It is a pleasure to have you here with us, and I hope Oi Hoi does an Oi Hoi job. And congratulations. We are waiting for your next book. थैंक यू सो मच चांदनी फॉर दोज लवली विशेस। पर अभी अगली किताब थोड़ी सी दूर है, क्योंकि इस किताब को लिखने में मुझे 2 साल लग गए। एंड यू वोंट बिलीव, November 20 when I started writing, September 22 it was almost ready. Suddenly मुझे लगा कि ये किताब ना बहुत ही बोरिंग है, because I myself I'm not able to read a book any further if I find even one page boring. I can't go to the next page. I just keep it aside. अरे छोड़ यार, बोरिंग है, Netflix ऑन कर देते हैं यार। सो मुझे लगा कि मुझे मेरी बुक ही बोरिंग लगेगी तो दुनिया क्या पड़ेगी। सो आई इन September 22 completely changed the book and injected dopamine into it, कि हर पेज पे लगे यार अगले पेज पे जाओ, अगले पेज पे जाओ, अगले पेज पे जाओ, वो फीलिंग आनी चाहिए। और अभी भी अब किताब October 23 में लॉन्च हुई, अभी हम February 25 में बैठे हैं। इट्स बीन 1 year few months। अभी भी and I'm not kidding, everybody has bad days. Whenever I have one, I'm feeling down and out, रात को सोने से पहले I just grab the book, it's always there on my bedside, open any page at random, read 1 or 2 pages and I feel elevated. And I think ये किताब चाहे, this book has sold in thousands. IIT Delhi has taken it as their official book on nostalgia. I'm really humbled by that. पर मुझे क्या लगता है ना कि अगर मेरी किताब मेरा मूड ठीक कर दे 2 मिनट में, तो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द बुक और माई सेल्फ। आई फील इट लाइक दैट, और क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है करोड़ों लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, because we are all similar, we are all connected. So that's what I feel is the Oi Hoi moment for me and can be for everyone else too. So Oi Hoi to Oi Hoi. Oi Hoi.